Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So as I have already told you that this is my second attempt at RBI Grade B exam. I have already gave one attempt in 2024. So these are some of the lessons that I learned from my first attempt at the RBI Grade B exam and things that I need to care about in this attempt. So first of all, do not lose your confidence. This is something that I have to really work on. So what happened last year was every year vacancies used to come around in the number of 200 to 250. But last year the number of vacancies dropped to just 66, from 200 to 66. That was a huge difference. And as someone belonging to general category, we only had 20 to 30 seats. So that dropping of number of vacancies really demotivated me and I just lost confidence in myself. I thought that I could never compete for just 66 seats and in the whole bunch of 2 lakh people who appear for this exam. I thought I don't have the capabilities. Even if I qualify pre or means, I will never be able to make it through interview. I was just overthinking it a lot. And like I just burnt out my 1 year of preparation and hard work in just few months. Like I just at last I just completely lost my confidence and I was like nahi hoga mera nahi hoga, and I just kept telling it to myself. And I just get a little lenient on my preparation कि यार मेरा तो नहीं होना है, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, एंड वो मेरे सबकॉन्शियस दिमाग में कहीं बैठ गया. एंड आई वॉज नॉट गिविंग इट माई ऑल इन माई लास्ट मंथ of preparation. So that's something that really take a hit on me. And later I realized that it was justified because I was in my first attempt and I was already underconfident. I did not had any job background. I was just a fresher. And then the dropping of number of vacancies was a like big thing. But this year, we all somewhere know that there are going to be less vacancies. So we have that mindset in us, and that's something that is not going to roll on us in this attempt. So yeah, that is my first thing, that whatever happens, question pattern changes or number of vacancies dropped, notification comes late or like anything like that happens, you don't have to lose your confidence. You have to be sure that you have prepared well, and if you work hard, you deserve that seat, you are going to get that seat. So this is my first learning. uh, and I guess this video is going to be little long, but I will just tell you, just bear with me for a little longer and I hope you get some valuable insights. Now second, reach your exam center city 1 day before your exam. So what happened with me was my center of exam city was like 3 hours distance from my hometown, and I traveled on the day of the exam. And like my exam started from 11 a.m and I reached there at 8 a.m, but I took the train at 5 a.m. So like I was a lot exhausted till the exam came. I reached the center at 9 a.m. I was sitting there and I was revising, but nothing was working. And there was a lot of anxiety also. I hadn't eaten anything because of the anxiety and stress. So I would recommend everyone, if your exam center city is more than distance of 200, sorry, 2 hour or 3 hours, just reach the exam center city 1 day before exam. You can stay at any relative's house if you have any friend's house, or you can book a hotel room. But it's very important. And also, if it's possible, take someone from your family or friend with you to the exam center, because I know that वहाँ पर जो एंग्जाइटी होती है ना, वहाँ पर सबको देख के जो अंडर कॉन्फिडेंस आता है, आई गेस इट्स really helps a lot if you have someone by your side who keeps telling you, no, you will do it, you will do it, relax, relax, like that. Now third, don't panic at the last moment. लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब मैं गई एग्ज़ाम देने अंदर, एंड वहाँ पर क्वांट्स की स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चंस बहुत टफ आ गए. पहला सेक्शन क्वांट होता है जो हमें अटेम्प्ट करना होता है, एंड वो मतलब मुझे तो बहुत टफ लगे थे, एंड उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया कि अरे आई एम नॉट एबल टू डू, एंड नॉट क्वांट्स में तो इतना मतलब आगे और क्वेश्चन टफ आएंगे, मुझे ऐसे फिर लगने लगा एंड मेरे दिमाग में सब चलने लगा. एंड 2-3 टफ क्वेश्चन देख के मैंने जस्ट पैनिक कर दिया. एंड आई एम डैम श्योर कि मैंने क्वांट्स में बहुत ही सिली मिस्टेक्स की होंगी, कैलकुलेशन में या फिर आंसर को ना देखने में अच्छे से या फिर क्वेश्चन को ना पढ़ने में, लाइक दैट.
सो दैट वॉज ओनली बिकॉज कि मैं लास्ट मोमेंट पे वहाँ पहुँच के बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगी थी. सो दिस इज समथिंग दैट एवरी वन शुड. एक दो टफ क्वेश्चन आया, जस्ट लीव इट थ्रू इट, स्किम इट थ्रू इट, आगे बढ़ो, मतलब दिमाग को शांत रखो सबसे ज़्यादा वहाँ पर. नाउ फोर्थ, रीड क्वेश्चंस थॉरोली, एक्यूरेसी ओवर क्वांटिटी. सो मैंने देखा कि जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में क्वेश्चन बहुत लॉन्ग आते हैं. लाइक वो आपको पैराग्राफ दे देंगे, वो आपको कुछ डाटा देंगे और कुछ और पूछेंगे. बहुत ही मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जिनको पढ़ने में टाइम लगता है. एंड समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम कीवर्ड्स पढ़ते हैं एंड देन वी जस्ट स्टार्ट मार्किंग इट. बट नहीं, वहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाती है. कई बार आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ दिस लिस्ट और समथिंग. तो वहाँ पर क्वेश्चंस को थॉरोली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चीज़ बहुत ध्यान में रखिए, आप जितने भी क्वेश्चंस मार्क करें दैट शुड बी एक्यूरेट. ये नहीं कि आप मान लो आप 80 में से 40 क्वेश्चन मार्क करना चाह रहे हैं बट वो 40 में से सिर्फ आपके 10 सही हो रहे हैं. नो, आप 25 क्वेश्चन मार्क करिए, 30 क्वेश्चन मार्क करिए, बट मार्क इट एक्यूरेटली. तो जैसे क्वेश्चन को बहुत ही थॉरोली पढ़िए. यू कैन डेवलप द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग फास्ट बाय रीडिंग बुक्स और आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स. एंड उससे आपका बन जाएगा एक. लेकिन क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है, एक भी वर्ड आप स्किप नहीं कर सकते हैं वहाँ पे. दिस इज वॉट कॉस्ट माई अटेम्प्ट. ओके, नाउ फिफ्थ, गो थ्रू ऑल ऑप्शंस स्पेशली क्वांट्स एंड रीजनिंग. सारे ऑप्शन से गो थ्रू कीजिए. जैसे क्वांट्स में कई बार होता है वी गट द आंसर, एंड मान लो हमें लास्ट एक दिया ए, उसमें आंसर हमारा जो आया है वो दिया है. देन बी में हमारा ए बी दिया है. देन सी में कुछ और क्वेश्चन दिया है, मतलब कुछ और ऑप्शन दिया है, एंड डी में उसके साथ वाला दिया है. तो इस वजह से हम ए मार्क कर देते हैं. बट हो सकता है कि सेकंड वाला भी सही हो सकता है, सी ऑप्शन भी सही हो, जो दोनों हो सकता है. इस वजह से सारे आंसर्स को चेक करना है, सारे ऑप्शंस को यू हैव टू चेक. उसमें टाइम लगता है, यू हैव टू गिव यू टाइम, बट सारे ऑप्शंस को चेक करिए. कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ए एंड बी, बी एंड सी, इस तरह के ऑप्शन दिए रहते हैं. तो वहाँ पर यू हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस. एंड क्वांट्स एंड रीजनिंग में स्पेशली ये होता है. तो ये ओके. नाउ सिक्स, लास्ट मिनट एंगजाइटी इज़ नॉर्मल बट लर्न टू डील विथ इट. जैसे मैंने कहा ना कि लास्ट मोमेंट में जब आप वहाँ एग्ज़ाम देने पहुँचते, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचते, वहाँ एंगजाइटी आती है, होती है, सबको होती है, बहुत नॉर्मल है. बट लर्न टू डील विथ इट. कि मतलब ठीक है, मुझे एंगजाइटी हो रही है, आई एम डीलिंग विथ इट, आई एम रियलाइजिंग इट. मुझे पता है मैं अपने आप को काम कर रहा हूँ. ऐसा नहीं कि मैं अपनी एंगजाइटी पे अपना पेपर ख़राब कर लूँ. जिस चीज़ के लिए मैंने 1 साल तक पढ़ाई की है उस चीज़ को मैं 10 मिनट की एंगजाइटी में ख़राब कर दूँ, तो वो नहीं करना है. जस्ट मतलब कि हाँ ठीक है, मुझे एंगजाइटी हो रही है, एक्नॉलेज इट एंड जस्ट लाइक काम इट डाउन. कि हाँ ठीक है, देखेंगे जो होगा, पेपर होगा, दिस इज जस्ट अ पेपर, दिस नॉट माई होल लाइफ. डील विथ इट. ठीक है, लास्ट मोमेंट पे ये अपने आप को, आपको बैकग्राउंड में ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. आप सेल्फ टॉक कर सकते हैं, या फिर आप पॉजिटिव अफर्मेशन देख सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं. दिस इज समथिंग यू हैव टू वर्क इन द बैकग्राउंड, ताकि आप फाइनल डे पे इसको एग्जीक्यूट कर पाए. एंड लास्ट, for GA section, avoid more time at general CA like awards, winners and appointments. So क्या हुआ कि जब मैं लास्ट ईयर प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने जो जनरल करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे कोई अवार्ड हो गया, या फिर कोई गेम हुआ, कोई ओलंपिक्स का गेम या फिर पैरा ओलंपिक्स, सब में जो विनर्स हुए, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, कोई अपॉइंटमेंट्स हुई किसी इंस्टीट्यूशन की, तो उस पर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था. एंड जब मैंने पेपर देखा, मैंने रियलाइज़ किया उस सेक्शन से मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं. एंड मैंने लास्ट ईयर पीवाईक्यूज भी उतने अच्छे से नहीं एनालाइज किए थे. दैट वाज माय मिस्टेक. देन मैं दोबारा इस अटेम्प्ट में गई, मैंने सारे पीवाईक्यूज देखे, मैंने कहा हाँ, हर साल तो यही होता है. बट मुझे आई वॉज अ बिगनर एंड मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी. सो आई गेव इट अ लॉट ऑफ टाइम. उसमें बड़े जो मतलब एडोटैप में जो हमें देते हैं ऐसे कंटेंट, वो काफ़ी बढ़ के होते हैं. इट्स लाइक 50 to 60 पेजेस एक मंथ के. तो उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया था, एंड एग्ज़ाम में क्वेश्चन उससे ज़्यादा नहीं आए थे. सो दिस ईयर आई हैव लर्न कि मैं उस सेक्शन को बहुत ही मिनिमम टाइम दूंगी. लाइक लास्ट के 2-3 महीने के मैं इसको पढ़ूंगी, एंड जस्ट स्किमिंग थ्रू इट. उस पर मैं ज़्यादा टाइम ना देकर जो बाकी इंपॉर्टेंट सेक्शन जैसे स्कीम हो गया, रिपोर्ट हो गया, आरबीआई का नोटिफिकेशन हो गया, मैं वहाँ पर ज़्यादा टाइम दूंगी अपना. So yeah, these were all my learnings that I learned from my past attempt at the exam, and I hope I use these learnings in my this attempt and make this attempt a success. I hope I added some value to your preparation also. And if you like this video, please like it and see you. Bye bye. Take care.